is your name, Father. Thank you. Our hearts are desires to see the nations worship you, Father. We love you, Lord. Thank you, Father. Lord, you accept our worship as a pleasing sacrifice, Lord. You are worthy of everything, Father. You are worthy of everything, Lord. You are worthy of all the praise, all the glory, Lord. We love you, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. बस तू ही योग्य है, बस तू ही योग्य है, हाँ तू ही योग्य है, हाँ तू ही योग्य है। सब चीजें तुझसे ही और सब कुछ तुझको ही महिमा होगी। सब चीजें तुझसे ही और सब कुछ तुझको ही महिमा होगी। Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, Jesus, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy, you are worthy, you are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. आइए हम सब हाथ न करते हैं, बस तू ही योग्य है, बस तू ही योग्य है, हाँ तू ही योग्य है, हाँ तू ही योग्य है। सब चीजें तुझसे ही, सब चीजें तुझसे ही, और
तुझसे ही और सब कुछ तुझको ही खुदा। जो भी हमारे पास है वो सब तेरा है, सब तेरे लिए है खुदा, सब तेरी महिमा के लिए है खुदा। जो भी हमारे पास है सब कुछ तूने हमें दिया है खुदा। Thank you, Father, for everything is from you, Lord, and whatever we have is for you, to you, for your glory, Lord. You are worthy of each and everything in our lives, Father. You are worthy of our life, Lord. We give our lives to you, Father. We give our voice to you, Lord. We give our words to you, Father. We give our mind to you, Lord. You use us for your glory, Lord. We thank you, Father. I am सभावाच ठाकर धन्यवाद करें. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. तू सारे चीजों के योग्य है खुदा. सब चीजें तुझसे आते हैं खुदा और सब चीजें तेरे लिए है, तेरी महिमा के लिए है खुदा. We love you, Lord. We thank you for your presence here, Father. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं यहाँ पर. Thank you, Lord. आइए हम आवाज उठाकर धन्यवाद करें. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let our praises reach your throne, reach your feet, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for you incline your ears towards us, Father, whenever we cry out, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I am समूह खोलकर धन्यवाद करें. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तू हमारी हर एक बातों को सुनता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा. तू सब चीजों के योग्य है परमेश्वर. तू यहाँ पर उपस्थित है, धन्यवाद करते हैं खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. तू हमें हर एक मुसीबतों से बचाता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं. Thank you, Lord. Thank you for all your promises are yes and amen, Father. Thank you for your word never fails, Father. Thank you for your word never goes void, Lord. Thank you, 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 Lord. उसकी चंगाई के लिए धन्यवाद करें. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करें. Thank you, Lord. Thank you, Lord. तूने अब तक हमें संभाला है, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा. हमें कुछ हानि न पहुंचाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं खुदा. We thank you for all your plans for us are to prosper and not perish, Father. Thank you, Lord. Thank you for your think for us, Lord. Thank you for your thoughts for us, Father. Thank you for your thoughts for us are to prosper and not perish, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. You deserve all the glory, Lord. All the honor, all the praise, Father. We thank you, Father. We thank you for you never hide your face from us, Lord. Thank you, Father. Thank you for you are always here, Lord. Thank you for you are always close to us, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for you never sleep, you never slumber, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for you surround us with your fire, Lord. Thank you for no weapon formed against us shall prosper. 1,000 may fall at our side and 10,000 at our right hand, but nothing will harm us, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for your cloud by day and fire by night, Lord. You are Jehovah Jireh, our provider, Lord. We will not fear, Father. We expect the unexpected from you, Lord. Thank you, Lord. I am आखिरी बार धन्यवाद के लिए. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. You accept our praises as a pleasing sacrifice, Father. We thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you this worship, Father. Accept it as a pleasing sacrifice. In Jesus' name I pray. Amen. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते. ते परमेश्वर खूप महान आहे. तर फोन केला की म्हटले बाळाची तब्येत खूप खराब आहे, त्याला कसं घेऊन जायचं. ते त्या क्षणी मी तिथं घरामध्ये प्रार्थनेला बसल्या बोलल्या तर देवा तुझ्याच नावावर घेऊन जाणार आहे, कारण तुझ्याशिवाय तर आम्हाला कोण नाही. कारण आम्ही हाक मारू शकतो तर तुलाच हाक मारू शकतो. त्यावेळेस हे गुजरातवरून तिकडं निघले तर दुसऱ्या दिवसपर्यंत पोहोचले. त्याच्या बाळाची खूप तब्येत खराब झाली. ते बोलले असे म्हणजे बाळ खराब झालं की त्याला नेऊ शकत आहे की नेऊ शकत आहे. ते म्हटले पण फोनवरती की आता आपण याला देवाच्या नावावरच घेऊन जाऊ शकतो, कारण बाळाची तब्येत खूप खराब होती.
तिथं पण डॉक्टरने ॲडमिट करायला सांगितलं. तर तिथं रात्री पोहोचली, ते बघते तर बाळाला खूप असं ऑक्सिजनमध्ये ते नाकामध्ये नळी टाकलेली, खूप त्याची हालत खराब आहे, पूर्ण छाती असं वरती निघलेली. आणि बघितलं तर ते बाळाचे एवढे छोटे छोटे हातपाय झाले. आणि नंतरून मग त्याला इंजेक्शन वगैरे दिलं डॉक्टरांनी. नंतर मी त्या बाळापाशी बसली, त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून प्रार्थना केली. आणि थोड्या वेळाने ते बाळ लगेच असं म्हणजे झोपी गेलं. तर रेश्मा बोलली, मम्मी हे झोपलं बाळ. नंतरून पण म्हणजे 2-3 तासांनी उठलं. तर बोलते, मम्मी त्यासाठी प्रार्थना कर. तो प्रार्थना केला का शांत झोपतो. तरी पण जोपर्यंत तिथं होती तोपर्यंत त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून प्रार्थनाच करायची. देवा बोलला, तर तूच आहे आमच्यासाठी. आणि मग नंतर तो बाळ आहे असं नॉर्मल होत गेलं. त्याच्यावर उपचार पण चालू होते. जोपर्यंत होती तोपर्यंत त्यासाठी प्रार्थना करायची. त्याच्या कानामध्ये बोलायची की आपला येशू जिवंत आहे आणि ते तुला लवकरच उठवणार आहे. ह्या दुखण्यामधून मी देवाला धन्यवाद देते की मला जितक्या दिवस मी तिथे होते तितक्या दिवस मला एकदम चांगलं ठेवलं, की मी गोळ्या पण नव्हते खात. जेवढ्या दिवस तिथं मी होते बाळाची सेवा करायला, तिथं परमेश्वराने मला एकदम व्यवस्थित ठेवलं. मी देवाच्या नावाला धन्यवाद देते. आणि परमेश्वराने एवढं जे मोठं संकट आलं होतं आणि त्या बाळाला पण एक नवं जीवन दिल्यासारखं झालं. मी देवाच्या नावाला धन्यवाद करते. कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पाँव को टलने नहीं देता। क्या मत अच्छा खुदा है। और हमारी सुरेखा सिस्टर ने बहुत अच्छा बोला एक बात, कि मैं उस बच्चे के कान में बोलती थी कि हमारा प्रभु जीवित है और तुझे भी जीवित उठाएगा। कितना अद्भुत विश्वास है ना। वो जो बोलते छोटा राई के जितना अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम पहाड़ों को कहोगे तो उखड़ कर वो जहाँ कहोगे वहां जाके गिरेंगे, है ना। कितना अद्भुत खुदा है। पहाड़ यानी आपकी समस्याएं, तो आपको खुद को उखाड़ना है उसे, है ना। उन पहाड़ों को खुद को उखाड़ना है और जहाँ आपको फेंकना है आप फेंक सकते हो उसे। वो बहुत अच्छा खुदा है। सच में प्रभु बहुत अच्छा है और हम धन्यवाद करते हैं सुरेखा सिस्टर के दोनों नाती और नातों के लिए। परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी, उन्हें घर लौटा कर लेकर आया घर पे और सुरक्षित रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सच में ऐसी बहुत सारी आंधी और तूफान जीवन में आ जाते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि घबरा मत, मैं तुम्हें थामे हुए हूँ, है ना। प्रभु हमें थाम कर रखता है। सिर्फ चंगाई ही नहीं, हमें उद्धार बहुत जरूरी है। चंगाई तो डॉक्टर भी दे सकता है ना। लेकिन अगर उद्धार कोई नहीं दे सकता, उद्धार बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर चंगाई मिली और मैं इधर ही रह गया यीशु मसीह आने के बाद, दूसरा आगमन के बाद, तो किसी काम का नहीं है ना। तो सबसे बड़ा उद्धार है जो हमें जरूरी है। और अगर हम प्रभु के साथ जुड़े हैं तो सारे ये प्रॉब्लम्स वो ऐसा निकाल देगा। वो बहुत अद्भुत खुदा है, वो बहुत अच्छा परमेश्वर है। वो सच में हमारे न कहे हुए शब्दों को सुनता है, वो बहुत अद्भुत है। तो क्यों ना हम अपने उद्धार के लिए रोए, हम अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें। क्यों ना हम अपने बच्चों के लिए रोए, अपने परिवार के लिए रोए, क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है। थोड़ा मतलब बहुत ही नज़दीक है वो समय। वो पलक झपकते ही वो समय हमारे सामने आ पहुँचेगा, इतना नज़दीक है। तो हम अब खुद के लिए रोए, हमारे खुद के बच्चों के लिए रोए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम रह गए तो बहुत टफ है। शायद मेरे लिए तो बहुत टफ है, मुझे मालूम नहीं आपके लिए। अगर आपके लिए भी बहुत टफ है तो आप ज़रूर रोइए और हमारा प्रभु ज़रूर हमें पार पहुंचाएगा। हमें ज़रूर यीशु मसीह का दूसरा आगमन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया की चीज़ें तो वो देगा ही, है ना। हमारा दुनिया का मम्मी पापा रात को हमें भूखे नहीं सुलाता है, तो वो क्यों सुलाएगा, वो क्यों ऐसा हमें रखेगा। तो हम धन्यवाद दे। ये अद्भुत बात है। सच में हम जीवित हैं सिर्फ उसके कारण। हमारे कदम को वो टलने नहीं देता है
हमें सुबह को उठाता है, नया दिन दिखाता है, नया सूरज दिखाता है। आइए हम धन्यवाद करें सारी गवाहियों के लिए। वो बहुत ही अद्भुत है, जो हमें जीवित रखता है, जो हमारे कदम को टलने नहीं देता। सच में वो जीवित है, इसलिए हम जीवित हैं। वो बहुत अच्छा खुदा है। आइए हमारे हाथों को उठाए, और जो महान, जिसने जंगल में से मार्ग निकाला और जिसने उस महासागर को दुभागा कर दिया, वो हमारे साथ है, वो हमारे बीच में है। जो वह योग्य, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। आइए हम धन्यवाद करें। सारी गवाहियों के लिए हम अपने हाथों को उठाए, उसका धन्यवाद करें। हम अपने आप के लिए धन्यवाद करें कि उसने हमें जीवित रखा, ये नया दिन दिया कि हम चल सके। उसने हमें मौका दिया कि अपने होठों को हिला सके उसके सामने। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। तू बहुत ही अद्भुत, बहुत ही महान खुदा है। तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को दे दिया, और जो उस पर विश्वास करता है वो नाश न होगा पर अनंत काल के जीवन को प्राप्त करेगा। हम धन्यवाद करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। हम मरेंगे नहीं पर हम तेरे साथ जिएंगे खुदा, इसलिए क्योंकि जीवित है, तू जीवित है। हम मरेंगे नहीं, तू हमारे कदम को ढलने नहीं देगा परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू जीवित खुदा है। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। तेरे अद्भुत कामों को आज हम याद करते हैं परमेश्वर। अपने आप को याद कराते हैं कि तूने हमारे जीवन में क्या क्या काम किया। हम मरे मुर्दे पड़े थे, हमें कोई देखता नहीं था, लेकिन तूने हमें अपने गले लगाया। तूने हमसे बातें की, तूने हमारे मन को जांचा। तू बहुत अच्छा खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। हमने सोचा नहीं वो बातों को तूने पूरा किया, जो हमने अपेक्षा नहीं की वो तूने पूरा किया खुदा। तू बहुत ही अद्भुत है, तू बहुत ही महान है। माँ से बढ़कर तू हमें समझता है, पिता से बढ़कर तू हमारा साथ देता है। हम गिरते हैं तो अपने बाहों में उठाता है, अब कमजोर पड़ते हैं फिर भी तू हमें हाथ पकड़ता है और फिर से चलने लगाता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं। तू हमारी न कही हुई शब्दों को सुनता है, उसका उत्तर देता है। हम तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर। आज हम हमारे बच्चों को, अपने आप को, हमारे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं खुदा। आज हमारे उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हमें योग्य ठहरा खुदा कि तेरे पुत्र के आगमन तक हम योग्य ठहर सके परमेश्वर। उसके आगमन को, दूसरे आगमन को हम देख सके खुदा, क्योंकि अगर हमने देखा यानी वो हमें उठा कर लेकर जाएगा। हमें ये आशीष दे परमेश्वर। हमारे मन को बना, हमारे चारों ओर लाल समुद्र है, चारों ओर वो जंगल है, रेगिस्तान है। हमें संभाल खुदा कि हम इस जंगल में खो न जाए, इस लहरों में गिर न जाए। हमारी आंखों को मजबूत करके हम तेरी ओर देख सके खुदा। हमारे मनों को ताकत दे परमेश्वर कि हम सिर्फ तेरी ओर ताकते रहे। इस हवा के झोंकों से न घबराए। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरे सामने झुकते हैं परमेश्वर, सजदा करते हैं खुदा। तेरे बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं।
उनके हृदय की प्रार्थना को तेरे सामने रखते हैं। तू बहुत अच्छा खुदा है। हम तुझे कुछ दे नहीं सकते, लेकिन अपने होठों की बलि जरूर दे सकते हैं खुदा। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन इतना है कि तूने हमें आवाज को रखा है, हमारे अंदर शब्दों को रखा है खुदा। हम तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं खुदा। तेरे सभी बच्चों को तेरे हाथों में देते हैं। हर एक के परिवार में सुख शांति को कहते हैं। हर एक के परिवार के ऊपर यीशु मसीह के लहू को कहते हैं। तेरा सामर्थ्य कहते हैं हमारे कमजोरी में परमेश्वर। हमें यूं ही हाथ पकड़कर तू लेकर चल खुदा, कि हम इस लाल समुद्र को पार कर सके परमेश्वर, इस रेगिस्तान को पार कर सके परमेश्वर, जो हमारे सामने है परमेश्वर। तू बहुत अच्छा खुदा है। तूने हमारे लिए पवित्र आत्मा रखा। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। हमारे कानों को स्पर्श करके हम सुन सके तुझे। हमारे हृदय को, हमारे मन को तू संभाल खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे दास को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। तू हमें चला परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर खुदा। तेरे सामने झुकते हैं और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले पिता। God is good. परमेश्वर अच्छा है, He's awesome God. वो अद्भुत परमेश्वर है And truly He's blessed God. और सच में वो धन्य परमेश्वर है। हाँ, what capacity you have? आपकी कितनी ताकत है? What is your capacity? आपकी ताकत कितनी है? How can you work? आप कैसे काम कर सकते हैं? How much can you work? कितना आप कर सकते हैं? It's all depend upon your capacity. वो आपके कैपेसिटी पे डिपेंड And करता I है। believe और मैं विश्वास करता हूँ that our capacity is given by God. हमारी ताकत जो है परमेश्वर के द्वारा दी As गई it है। is said in 2 Corinthians 9 chapter and 10th verse. जैसे दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 9वां अध्याय 10वें वचन में लिखा है That He Himself gives the ability to His people. कि वो अपने लोगों को खुद समर्थ करता है, Ability to sow, योग्यता देता है बोने की, ability to reap, योग्यता देता है काटने के लिए, ability to move ahead. और योग्यता देता है आगे बढ़ने It's के very लिए। well known that our ability comes from Him. और ये बहुत ही अच्छे से सब जानते हैं कि हमारी योग्यता उसकी ओर से आती है। It's not me, it's not me, it's not me, it's you alone. ये मैं नहीं, तू है प्रभु। Do as God commands you. आप करिए वो जो परमेश्वर आपसे चाहता है, As He आपको आज्ञा commands you, देता है। do that. जो आपको वो आज्ञा देता है वो आप करिए। Do not worry about your age. आपके उम्र की परवाह न कीजिए। You're retired, आप रिटायर हैं, you're young, आप जवान हैं, you're school going, आप स्कूल में जाते हैं, you're going for a job. या आप जॉब पे जाते हैं। Don't worry about your age, what your age is. आपके उम्र की चिंता मत करो, आपकी उम्र कितनी है। Age is beautiful. उम्र जो है बहुत ही सुंदर Every है। age is beautiful. हर उम्र सुंदर है। In every age, when God calls, it's awesome. हर उम्र जिसमें परमेश्वर आपको बुलाता है वो अद्भुत है। We know Prophet Samuel. हम जानते हैं नबी शमूएल को, He was called when he was born. वो तभी बुलाया गया परमेश्वर के द्वारा जब वो जन्मा था, When he was in the house of God. जब वो परमेश्वर के घर में When he था, was serving Eli. जब वो एली की सेवा में था। That time God called him. उस समय परमेश्वर ने उसे बुलाया। We know Jeremiah. हम यिर्मयाह को जानते हैं। God called him before his birth, or he was ordained when he was in the mother's womb. वो जब माँ के गर्भ में था तभी उसका अभिषेक हुआ था। God called him. परमेश्वर ने उसे बुलाया, God separated him. परमेश्वर ने उसे अलग किया God knew him. और परमेश्वर से जानता है। God called each one of us in our own time, which He परमेश्वर ने appointed for us. हम सबों को बुलाया हमारे नियुक्त किए हुए समय में। Are you obeying God or not? क्या आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं? On all you respond to Him or not? आप उसको प्रतिक्रिया दिखाते हैं या नहीं? It matters about your capacity.
वो आपके ताकत पर निर्भर है। We need to check that what is my ability, what is my हमें capacity, ये जांचना है कि मेरी योग्यता क्या है, how much capable am I मैं कितना योग्य हूँ to obey His word. उसके आज्ञा का पालन करने के लिए। Am I capable to obey Him? क्या मैं योग्य हूँ उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए? Am I capable? क्या मैं योग्य हूँ How much I am capable? और मैं कितना योग्य हूँ? How much capability I have to respond to Him in truth? और उसकी सच्चाई में मेरी योग्यता कितनी है? How much I am going to respond to Him? और उसके बुलाहट को मैं कितनी प्रतिक्रिया दूंगा? God gave each one his capability. परमेश्वर ने हर एक को उसकी योग्यता दी है And God gave each one according to his capability. और परमेश्वर ने उसके अनुसार हर एक को उसकी योग्यता दी है। You have something to give. आपको कुछ है देने के You लिए, have something to do. आप कुछ कर सकते हैं, You have a capacity. आपके पास वो काबिलियत You है, have a capability, ability. आपके पास वो समर्थता है। Should we open Matthew 25th chapter and the 14th verse? क्यों न हम मत्ती 25 अध्याय 14 वचन खोले, It is just like a man going on a journey. क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है। It's about a man who is going to the journey. ये एक मनुष्य के बारे में है जो सफर के लिए निकल रहा है And we know that man. और हम उस मनुष्य को जानते I हैं। believe if Jesus said it in parable, मैं विश्वास करता हूँ कि अगर यीशु ने दृष्टांत में कहा, then he spoke something about himself. उसने खुद के बारे में कहा। We can see in Acts 1:10 हम प्रेरितों के कार्य 1:10 में देख सकते that हैं Jesus went up and he was taken up in the sky. कि यीशु मसीह ऊपर ऊपर उठाया गया और ऊपर उठाया गया And all disciples were gazing on him intently. और सब शिष्य उसकी ओर ताकते रह गए And suddenly two men appeared. और तुरंत ही दो व्यक्ति दिखाई They दिए were dressed in white और वो सफेद पोशाक पहने and they हुए stood थे beside बाजू- them और उनके बाजू में वो खड़े हुए and they spoke with apostles. और प्रेरितों के साथ बातें Oh, men of Galilee, हे गलीली के मनुष्यों, they said, उन्होंने कहा, why you stand here looking into the sky? क्यों आप आसमान की ओर देख रहे हो? As he went, जैसे वो गया, as you saw him going, जैसे आप उसे ऊपर ऊपर उठते देखे, taken up ऊपर जब वो उठाया in गया, the same way, उसी तरह से he's going to come. वो आएगा। There will be no difference. कोई अंतर नहीं होगा। As he went, जैसे वो गया, as he taken up, जैसे वो ऊपर उठाया गया, in the same way, उसी तरीके से you will see him. आप देखेंगे उसे आते हुए। He will come down. वो आएगा, He will come back वो वापस आएगा in the same way. उसी तरीके से। Same Jesus, वही यीशु our King, हमारा राजा, will come. वो आएगा, He will come. वो आएगा। He's speaking about that parable, and he's speaking with that parable to his disciples. और उस दृष्टांत के जरिए वो अपने शिष्यों से बात कर रहा था। That King is going to come. वो राजा आएगा, The Lord is going to come, वो प्रभु आएगा, and He's going to come, and He will see the account. वो आएगा और हिसाब किताब को देखेगा। We need to be very careful. हमें बहुत ही खबरदार रहना है। Our Lord bestowed His grace. हमारे प्रभु ने अपने अनुग्रह को उंडेला है। He gave enlightenment to each one of us. उसने हम में से हर एक को प्रकाश दिया है। He gave talents to us, हमें उसने योग्यताएं दी है, blessings to us, आशीषें दी है, gifts to us. दान दिए हैं। Each one of us. हम में से हर एक को That gifts, वो दान, that blessing, वो आशीष, that talents वो योग्यता is given to us वो हमें दी गई है that we may strengthen the house of God. कि हम प्रभु के घर को सामर्थ्य दे। कुठून तरी आला कुठं तरी गेला असं नाही. किधर से तो आया किधर तो गया ऐसा नहीं। Where I am going,
कहाँ मैं जा रहा with हूँ, whom I am going, किसके साथ जा रहा why I हूँ, am going, क्यों मैं जा रहा who हूँ, called me, किसने मुझे what is बुलाया, the purpose of my life. मेरे जीवन का मकसद क्या है। We have a goal, हमारे पास मकसद we है, have assignment, हमारे पास वो काम है, we have a purpose. हमारे पास मकसद है, We are the people with the purpose. और हम लोग हैं जो मकसद के लोग। And the King of Kings will come. और राजाओं का राजा आएगा, And the Lord of Lords will come. और प्रभुओं का प्रभु आएगा। He will come back with his own glory. वो अपनी महिमा के साथ आएगा। He will come in the same way. वो उसी तरीके से आएगा। The same Jesus वही यीशु will come वो आएगा, as they have seen him going up and taken up in the sky. जैसे उन्होंने देखा ऊपर उठते उठते। The talents, the abilities, the powers, the glory God gave to us, योग्यताएं, सामर्थ्य, talant, gaurav, महिमा जो प्रभु ने हमें दिया है, He gave that we may strengthen the house of God. उसने हमें इसलिए दिया कि हम प्रभु के घर को और सामर्थ्य दे सके, Edify the उसे house of God. प्रभु के घर को बना सके, Enrich the house of God. प्रभु के घर को ताकत दे सके, Bless the house of God. प्रभु के घर को आशीष दे सके, Uplift His church. उसके कलीसिया को ऊंचा उठा Not सके। speaking about the building of the church building. मैं कलीसिया के बिल्डिंग के बारे में नहीं कह I'm रहा, speaking about the church of God. मैं परमेश्वर के घर के बारे में कहता हूँ, About whom Jesus said, जिसके बारे में यीशु ने कहा, I am going to build my church. मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा। Jesus is not going to come and build a church with the stones. यीशु मसीह पत्थर की कलीसिया बनाने नहीं आएगा, He is building His church वो अपने कलीसिया को बना रहा है with the living stones, you and me. जीवित पत्थरों से, आप और मेरे से। And we have a part in it. और हमारा उसमें भाग है, Each one of us. हम में से हर एक, We all many. हम सब, We all are many. हम सब बहुत है, Are one body. हम सब मिलकर एक देह है, And we each one और हम हर एक belong to one another. एक दूसरे के हैं। Thinking which we carry. देखिए, जो सोच विचार हम करते हैं, What the man thinks, so is he. जो मनुष्य सोचता है वो वैसा ही है। What am I thinking? मैं क्या सोच रहा हूँ, What is my thoughts? मेरे विचार क्या है। We all have a different gifts. और हम सबों को अलग अलग दान है। He has given us a grace. उसने हमें अनुग्रह दिया है, And according to His grace, और उसके अनुग्रह के अनुसार He bestowed His gifts. उसने अपने दानों को उंडेला है। If someone is having a prophecy, अगर किसी के पास भविष्यवाणी की का दान है, then you prophesy in your faith. तो आप अपने विश्वास में भविष्यवाणी करते That हैं, portion should be prophesied in faith. और वो जो है विश्वास के साथ भविष्यवाणी का भाग है। If you have a gift to अगर serve, आपके पास दान है सेवा करने का, then let Him serve. तो सेवा करना, Don't stop. रुक मत जाओ। गायची वाटलं पण गाऊच शकत नाही हो म्हातारा. काम करायची वाटलं पण क्षमताच नाही. गाना गाना है पर गा नहीं सकता, काम करना है पर कर नहीं सकता। Not in that stage. उस उम्र में नहीं, Now, अभी God gave each one परमेश्वर ने हर एक को दिया the ability, योग्यता, the gifts, दान, power, सामर्थ, talents. ताकत। If you have a gift to teach, अगर आपको सिखाने की योग्यता है, teaching gift, then teach. तो सिखाइए। Encouraging gift, then encourage. किसी को प्रोत्साहन का दान है तो प्रोत्साहन Giving दीजिए, gifts, then give. देने का दान है तो दीजिए, But give generously. पर खुशी से दीजिए। You have a gift of leading, then lead. अगुवाई करने की का दान है तो अगुवाई But कीजिए, lead in diligence. पर गंभीरता से अगुवाई कीजिए। जसं पाहिजे तसं घेऊन जायचा मेंढरांना. देवाचं मेंढर आहे. जैसा चाहिए वैसा बेड़ों को लेकर गया। परमेश्वर की बेड़े हैं, Be diligent with it. उनके साथ गंभीर हो जाओ। Be careful. ओ आप खबरदार हो जाओ, Should we remember that Jacob
क्यों ना हम याकूब को याद करें। You know, he was going to meet his brother Esau, वो ईसाऊ अपने भाई से मिलने गया and he had many livestock. और उसके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां, बहुत सारे पालतू जानवर थे। His brother said, उसके भाई ने कहा, "Come man, come with me. Let's go ahead." उसके भाई ने कहा, आजा मेरे साथ चल आगे बढ़ते हैं। But Jacob was a man of discernment. पर याकूब जो था उसको परखने का दान था। Hello, we are God's people. हम परमेश्वर के लोग हैं, We need to have the spirit of discernment. हमें परखने की आत्मा होना जरूरी है। कसं वाटलं गेलं तसं वाटलं नाही. No. नहीं, ऐसा नहीं। He said, Jacob said, याकूब ने कहा, "My Lord, हे मेरे प्रभु, you go ahead. आप आगे जाइए, Because I am a man क्योंकि मैं मनुष्य हूँ with a flock. जिसके पास जानवर है। And they will die in the way if I trouble them." अगर मैं उन्हें और तकलीफ दूं तो वो रास्ते में ही मर जाएंगे। We need to think what I am doing. हमें ये सोचना बहुत जरूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, How I am leading. मैं कैसे अगुवाई कर रहा हूँ, With what I am feeding my people. और किससे मैं मेरे लोगों को खिला रहा हूँ। In showing mercy, let him do it cheerfully. अगर दया दिखाते हैं तो खुशी से दिखाएं। And really we need to be always thankful to God for one another. और सच में हमें हमेशा एक दूसरे के लिए प्रभु को धन्यवाद करना Because चाहिए, His grace is enough. क्योंकि उसका अनुग्रह काफी His है, mercy is enough. उसकी दया काफी है। He has given you a grace in the Christ Jesus our Lord. और उसने हमें क्रिस्त यीशु के अंदर दया दिखाई है। For in Him you are enriched daily. और उसके अंदर आप हर रोज जो है वो ताकत को पाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Our enrichment comes from Him. और हमारा सामर्थ, हमारी ताकत उससे आती है। A provision comes from Him. वो हमारा वसीला है। We heard the testimonies now. हमने अब गवाहियों को In सुना। every testimony there is a power. हर गवाही में सामर्थ्य In है, every testimony there is a freedom. हर गवाही में आजादी In है, every testimony there is a presence of God. हर गवाही में प्रभु की उपस्थिति In है, every testimony there is a glory to God. हर गवाही में परमेश्वर को महिमा है। We need to take care, हमें ध्यान देना है, understand समझना है। that it's God who gives me speech. ये परमेश्वर है जो हमें शब्द देता है। It's God who gives all of us knowledge. ये परमेश्वर है जो हम सबों को ज्ञान देता है। कोण शिकवला? सुरेखा ताईला कौन सिखाया सुरेखा सिस्टर को जाऊन त्या बालाच्या कानात बोलायचं? कि जाकर उस बच्चे के कान में बोले? God. परमेश्वर। Who taught that woman to go to Sunanda Tai and for prayer? किसने उस स्त्री को बताया सुनंदा सिस्टर के पास जाओ प्रार्थना के लिए? God. परमेश्वर ने। And there is a healing. और वहाँ पर चंगाई है, There is a presence of God. वहाँ पे प्रभु की उपस्थिति है, There is life. वहाँ पे जीवन है, There is miracle. वहाँ पे चमत्कार All है। knowledge सब ज्ञान it's given to us through our Lord. वो हमें प्रभु के द्वारा मिला है। It's awesome. ये अद्भुत है। He confirms our life before others. वो हमारे जीवन को पक्का करता है दूसरों के सामने, That you may lack no gift in your life. आपके जीवन में आपको किसी दान की कमी ना हो If you may fall short of no spiritual gift. और आपको कोई भी आत्मिक ज्ञान की कमी नहीं होगी, आत्मिक दान की। You are the church. आप कलीसिया है, Each one a member हर एक उसका अंग है, of that body. उस देह का The same blood flows. उसमें वही लहू बहता The है, same spirit flows. वही आत्मा बहती The है same power is released. और वही सामर्थ्य छुटकारा पाता है। Rekha said, रेखा ने कहा, to whom to say and what to tell, I don't know. किसको बोलने का, क्या बोलने का मुझे नहीं मालूम। God allows that situation परमेश्वर वो परिस्थिति को लेकर आता है that you may speak to a right person कि आप सही व्यक्ति से बात करें and you may operate as a right member of the right body.
कि आप उस देह का सही अंग करके इस्तेमाल हो सको। Glory to God. परमेश्वर को महिमा God मिले। loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, He cares for you. वो आपको संभालता है। God works on each one of us that we may lack no spiritual gift. और परमेश्वर हम में से हर एक पे काम करता है कि हम में कोई भी आत्मिक दान की घटी ना हो। He has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में क्रिस्त यीशु मसीह के साथ सारे आत्मिक दानों से, स्वर्गीय दानों से आशीष दी है। Hallelujah. You are very special. आप खास है बहुत। You are in the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। And we all eagerly wait for the revelation of our Lord Jesus Christ. और हम सब प्रभु यीशु मसीह के प्रकटीकरण के लिए रुके हैं। Matthew 25th 14th verse says, मत्ती 25 अध्याय 14 वचन कहता है, For it is just like a man going on a journey who called all his servants and entrusted them with his possession. क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। Wow! With whom no possession is there? किसके पास है संपत्ति? Who is having the possessions of the king? राजा की संपत्ति किसके पास है? Where is your king? आपका राजा कहाँ है? He's in heaven. वो स्वर्ग में है। He's coming back soon. वो बहुत जल्द आने वाला है। In John 14 he said, यूहन्ना 14 में उसने If it कहा, was not so, I would have told you. अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको बता देता। But it's not like that. पर वो ऐसा, I go to prepare a place. मैं जा रहा हूँ जगह बनाने के I'm going लिए to take you और मैं तुम्हें लेकर to the जाऊंगा same place. उसी जगह पर। In my father's house there is a place. मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, Mansions. बहुत सारी जगह। And in that mansions I need to be. और उसमें मुझे रहना है। Then now, अब right now, इस समय each one of us आप में से हर एक has been given God's blessings, talents, riches, grace, speech. और प्रभु ने हमें दान दिए हैं, शब्द का दान दिया है, हमें बोलने का दान दिया है, हमें बहुत सारी योग्यताएं दी है, काबिलियतें दी है। Who called his servants, उस मनुष्य ने अपने नौकरों को बुलाया entrusted them with his possessions. और अपनी संपत्ति उनके हाथों में सौंप दी। महिमावंत Psalm परमेश्वर। 24:1 says, भजन संहिता 24:1 कहता है, The earth is Lord's, पृथ्वी प्रभु की है and all the fullness thereof. और उसमें सब कुछ, The world दुनिया and all that dwells in it और वो सब जो इस सृष्टि में रहते हैं are his. वो उसके हैं। Hallelujah. हालेलुया। He is our God. वो हमारा परमेश्वर है, He is our Lord. वो हमारा प्रभु है। Save me. मुझे बचा। Who said like this? ऐसा किसने कहा? Peter said, पतरस ने कहा, Lord, save me. प्रभु तू मुझे बचा। Maybe our situation is like that. शायद हमारी परिस्थिति ऐसी हो And we may crying out to God, Prabhu, Vatsumala. और हम प्रभु को रोक कर पुकारते हैं, मुझे बचा Save परमेश्वर, me, Lord. मुझे बचा Save प्रभु, me, Lord. मुझे बचा ले, I'm dying मैं मर रहा हूँ without any hope. बिना किसी आशा के। Where was Peter? पतरस कहाँ था? In midst of water. लहरों के बीच में। इकडं पण नाही, तिकडं पण नाही. प्रभूकडे पण नाही, नावात पण नाही. मध्ये बीच में नाव माझी डोलते. चांगलं आहे ना गीत? पाण्यावरी नाव माझी डोलते पाण्यावर. There are many varas comes.
बहुत सारी हवाएं आती है, storms comes, बहुत सारे तूफान and it आते हैं, strikes me who am faithful with God. और वो मुझ पर ही आकर गिरती है। मैं परमेश्वर से इतना वफादार Why me? थी। मैं क्यों? Don't worry. चिंता मत करो, Trust God. प्रभु पे भरोसा करो। He has entrusted you with all His gifts and blessings. उसने आपको उसके सारे दानों से आश्रित किया है। Earth, पृथ्वी, everything is Lord's. सब कुछ प्रभु का है। World and its fullness is Lord's. All that dwell therein is Lord's. दुनिया, सृष्टि और जो उसमें रहने वाले हैं, सब कुछ प्रभु के हैं। Paul writes to Timothy in 6:20 of 1 Timothy. पौलुस पहला तीमुथियुस 6:20 में कहता है, Guard what has been entrusted to you. तो तुम्हें सौंपा गया है, उसे संभाल कर रखना। No man, He has entrusted you. वो आपको उसने सौंपा है। You should be like Shadrach, Meshach, Abednego. आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो जैसा होना Let there चाहिए। be fire. आग होने दो, Let there be water. पानी होने दो, I am not afraid. मैं डरूंगा नहीं। Let there be lions. सिंह होने दो, Hungry lions. भूखे से, I will not cry now. मैं अब रोऊंगा नहीं। Lord, take care. प्रभु, तू संभाल प्रभु। Today I will say, आज मैं कहूंगा, I thank you for all the promises. सारे अभिवचनों के लिए धन्यवाद I प्रभु। thank you for all the talents. सारे दानों के लिए I धन्यवाद thank you for all the gifts. मैं सारे दानों के लिए I धन्यवाद thank you for all the करता हूँ। blessings. सारी आशीष के लिए I धन्यवाद thank you for करता हूँ। all the speech which you gave to me. और सारे शब्द जो तूने मुझे दिए हैं, All the Rhema word. सब रेमा वचन, The word which is perfect in the time you gave to me. और वो वचन, वो शब्द जो सही समय पे तूने मुझे दिया है, समय पे एकदम सही होता है. That word you gave me. वो वचन तूने मुझे दिया I am going to use it. और मैं इसे इस्तेमाल करूंगा। We need to be very alert. हमें बहुत ही जागरूक We रहना are है। waiting for Lord's coming. हम प्रभु के आगमन पे रुके We need to हैं guard what is entrusted to us. और हमें पे संभालना है वो वो जो- सारी चीजों को. जो प्रभु ने हमें दी है, What He gave to you. उसने आपको क्या दिया? Chance after a chance. मौके के ऊपर मौका। Oracle came और एक and कलाई, she said, Papa, और उसने कहा, पप्पा, my teacher told me मेरे टीचर ने कहा, all of us to speak about our favorite person. पापा हमें हमारी टीचर ने कहा कि हम सबों को हमारे फेवरेट पर्सन के बारे में बोलना है, And I don't have any favorite person. और मेरे पास, मैं किसके लिए बोलूं? मेरे पास कोई फेवरेट पर्सन नहीं है Except Jesus. यीशु के बिना। I said, go and tell about Jesus. मैंने कहा, जा और जी यीशु के बारे में बोल। How I should say? कैसा बोलना है? As you know about your favorite person, that you say. मैंने कहा, जो तुझे मालूम है यीशु के बारे में तेरा फेवरेट And she पर्सन। said, we have to take the picture of it. और उसने कहा कि हमें पिक्चर भी लेकर जाना है उसका। Then from where I'll get picture? तो पिक्चर कहाँ से मुझे मिलेगी? Jesus का? यीशु का। I said, draw. What you know, do that. मैंने कहा, तू उसको खुद बना। She drew a man, a naked man, hanging on a tree. उसने एक व्यक्ति को जो नंगा था, क्रूस पर लटका हुआ था, ऐसा उसने बनाया। She went to school. और उस चित्र को लेकर वो स्कूल में गई। God gave you talents. परमेश्वर ने आपको दान दिए हैं। God gave you according to your ability. परमेश्वर ने आपके योग्यता के अनुसार दिया है। Today is a day. आज वो दिन है। Today is a day of salvation. अब ये दिन उद्धार का दिन Today है। is a day which you need to redeem it. आज वो दिन है जो आपको छुटकारा करना है। You need to take it up. आपको ले लेना है। Useful to the full. पूरी तरह से इस्तेमाल करना For है। His glory, for His उसकी name. महिमा के लिए, उसके नाम Not के लिए। tomorrow, कल नहीं, not day after tomorrow. परसों नहीं, Today. आज। In Matthew 25:15 it says, मत्ती 25:15 में वो कहता है, to one He gave 5 talents, and to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his own ability. उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात सामर्थ्य के अनुसार दिया। How good He is.
कितना अच्छा है वो। He has not given anyone out of his ability. उसने किसी को भी उनकी काबिलियत के परे नहीं दिया। देवाला माहित है प्रभु को मालूम है how much you can take it आप कितना लोड उठा सकते हैं। out of that. उसके परे, Beyond that, उसके he is परे, not going to pressurize you. वो आपको He will not pressure नहीं allow करेगा। you to be tempted. और वो आपको परीक्षा में नहीं He डालेगा। knows what abilities and powers is given to you. वो जानता है कि कौन सी योग्यताएं आपको दी गई है How you can do? और आप कैसे कर सकते हैं। Ability. काबिलियत God gave you. परमेश्वर ने आपको दी है। Talents. योग्यता God gave you. परमेश्वर ने दी है। Sister was crying yesterday. हमारी Rupali sister. रूपाली सिस्टर हमारी रो रही थी कल। Nitin brother was crying. नितिन ब्रदर भी रो रहे थे And they said, God, the doctors give up. और वो हमें बता रहे थे कैसा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। They told that नक्की 100% operation. उन डॉक्टर ने कहा था कि 100% ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। सुनंदाताई ऑपरेशन करती का? मग का गेले? बोला सुनंदाताईचं देव आहे ना. हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hello. Do you know what abilities you have? आपको मालूम है कौन सा दान आपको मिला है? She said, उसने कहा, her husband said, उनके पति ने कहा, doctors failed to heal us. डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर पाए But God healed us. पर परमेश्वर ने हमें चंगा किया। No operation, कोई ऑपरेशन नहीं, no medicine, कोई दवाई नहीं, everything with you. हम सब कुछ फेंक दिए। Hallelujah. हालेलुया। Many years passed. बहुत साल हो गए। A bedridden man बिस्तर पे सोया हुआ व्यक्ति started walking, चलने लगा, limping, walking. लड़खड़ा कर चलने Oh, लगा। hallelujah. Hallelujah। Again going to Bombay for a work. फिर से बॉम्बे काम पर जाता है। God is good. परमेश्वर अच्छा He है, lived, man. वो जीवित है He has given you according to your ability. और उसने आपको आपकी काबिलियत के अनुसार दिया है। Not more than that. उससे बढ़कर नहीं, Not less than that. उससे कम नहीं। That you may say, वो मला का थोडंच दिलं ना. कि आप कहे कि मुझे तो थोड़ा ही दिया था ना। अरे तुझी योग्यतापेक्षा चांगलंच दिलेलं आहे, बरोबर दिलेलं आहे बेटा. You can do it. आप कर सकते हैं। Now is the time to be serious. अब समय है हमें गंभीर होना है। Serious with God. परमेश्वर के साथ गंभीर, Walk with God. प्रभु के साथ चलो, Know God. परमेश्वर को जानो। He has not given anyone more or less. उसने किसी को भी थोड़ा या ज्यादा नहीं Our दिया। God is a good God. हमारा परमेश्वर अच्छा He परमेश्वर है। provides each and every one of us. वो हम में से हर एक को देता है। His name is Jehovah Jireh. उसका नाम है यहोवा इरे। He is a provider. वो हमारा देने Should we वाला। just praise Him, क्यों ना उसकी स्तुति करें, glorify Him? उसकी महिमा Some करें। to 5, some to 2, some to 1. कुछ को 5, कुछ को 2, कुछ को 1। Whatever you have, जो कुछ आपके पास है, your blessing, आपकी आशीष, your talents, आपका दान, your prosperity, आपकी उन्नति, your provision, आपका वसीला, your abilities, आपकी योग्यताएं, योग्यताएं, काबिलियत, your powers, आपके सामर्थ्य your influence, और आपका पहचान, whatever you have, जो कुछ आपके पास है, it has been entrusted by the Lord to you. वो प्रभु की ओर से आपको दिया गया है। With the heavenly places, God blessed you. और स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने आपको आशीष With the दी है। heavenly purpose, God blessed you. और स्वर्गीय मकसद के कारण The परमेश्वर purpose ने is आपको great आशीष and the दी है। purpose is good. और जो मकसद है महान है और मकसद जो है अच्छा है। The purpose is glorious and the purpose is awesome. मकसद महिमावंत है, मकसद अद्भुत है And the purpose is for the good future for you. और मकसद आपके अच्छे भविष्य का है And to accomplish your hope at और last. अंत में आपकी आशा को पूरा करना। His purpose of blessing. उसके आशीष का मकसद His purpose of providing you आपको देने का कारण is that you may know God's perfect will कि आप परमेश्वर के परिपूर्ण इच्छा को जान सके and do according to it. और उसके अनुसार करें। Matthew 25:45.
इसी अध्याय 25 का 45 वचन हम पढ़े। And then the king will answer, और तब राजा उन्हें उत्तर देगा, truly I tell you, मैं तुमसे सच कहता हूँ whatever you did for one of the least of these brethren of mine, कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, you did it for me. वह मेरे भी साथ किया। Hallelujah. Hallelujah. He's not about speaking about poor people. वो गरीब लोगों के बारे में नहीं He's not कहता, speaking about orphans. वो अनाथों के बारे में नहीं What he's कहता। saying? Whatever you did it for one of the least of these brothers of mine. कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया। To see who is the brother of Jesus. आपको ये देखना है कि यीशु का के भाई कौन है। To whom to give? किसको देना है, What to give? क्या देना है, Your talents, your efforts. आपकी योग्यताएं, आपके दान। He says, whatever you did वो कहता है जो कुछ आपने for किया one of the least of these brothers of mine, you did it for me. इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे से साथ किया। And 45th verse says, और 45 वचन कहता and है, then the king will answer, truly I tell you, whatever you did not do to my one of the least of these, you have not done with me. तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। Hallelujah. हालेलुया। That means इसका मतलब है you could have done it. आप कर सकते थे You have ability to do. और आपको काबिलियत है करने की। You have ability to reach out and touch someone. आपको ये योग्यता है कि किसी को आप छू सकते हैं, Help someone. किसी को मदद कर सकते Build हैं, someone. किसी को बना सकते Strengthen हैं, someone. किसी को सामर्थ दे सकते Empower हैं, someone. किसी को ताकत दे सकते Enrich हैं someone. और किसी को उठा सकते हैं। Stand for the brethren in Christ. क्रिस्त में भाइयों के लिए आप उन्हें उठाओ। God's purpose. परमेश्वर का मकसद, Great purpose. महान मकसद। Then the king will answer, तब राजा उत्तर देगा, truly I tell you, सच में मैं तुमसे कहता हूँ, whatever you did not do to these of my least brethren, जो कुछ तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ नहीं किया, you have not done unto me. तो वो मेरे साथ नहीं You किया। have neglected them from blessing them. उन्हें आशीष देने से इनकार किया। You have neglected your own birthright. आपने खुद के जन्म के हक को आपने इनकार कर दिया। Like Esau. ईसाव के जैसा। God has blessed you परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। with blessings. आशीष से You have never appreciated what you have. आपके पास जो है उसका आपने प्रशंसा नहीं की। You thought you are very obedient. आपने सोचा कि आप बहुत ही आज्ञाकारी You हैं thought you are the obedient person and fulfilling all God's word. और आपने सोचा कि आप बहुत ही आज्ञाकारी हैं और प्रभु के बच्चे हैं। Today we need to check our hearts. आज हमें हमारे हृदय को जांचना है। Where I stand. कहाँ पर मैं रुका That sower, no, he went and sowing the seeds. वो The man, बीज बोने वाला गया और बीज बोने लगा। some fell on a rocky place. कुछ पहाड़ी जगह पर गिर Is my गए। heart like a rock? क्या मेरा हृदय पत्थर जैसा है? Have you seen Indian parents scolding a child? आपने कभी देखा माता पिता बच्चों को डांटते हुए? डोकं नाही करे तुला? क्या तुझे दिमाग नहीं है क्या? It's blocked. वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। I don't want to hear anything. मुझे कुछ भी सुनना नहीं है। Eyes are open, आँख खुले हैं, ears are open, कान खुले हैं and nothing goes inside. और अंदर कुछ नहीं जाता। जे बोलायचंय बोल. जो बोलना है बोल। माझा डोक्यात काही जाणार नाही, शिरणार नाही. मेरे सर के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। Stone heart. पत्थर का हृदय, Nothing goes कुछ inside. भी नहीं जाता है। There was less soil. मट्टी नहीं थी, That's थोड़ी why- मट्टी थी। That's why इसीलिए when sun came, sun arised, it जब सूरज उगा was scorched. सब वो जल गया। Some fell on a wayside. और कुछ रास्ते पर गिर गए। So much careless and botherless about God's word. परमेश्वर के लिए इतना बेपरवाह है। Seed fell on a path. वो बीज जो है वो रास्ते पर गिर गया।
birds of the air और हवा के जो पक्षी है came and took. आए और उठा कर ले गए। What is the condition of the church? कलीसिया की परिस्थिति क्या है? Thorny church. कांटेली भूमि, हाँ लय वाढलंय बाबा. आपण बघू कसं वाढतं. बहुत बढ़ गया। देखते हम कैसे बढ़ता है। Thorns. कांटे Can't tolerate and love one another. एक दूसरे को सह नहीं सकते, Can't encourage one another. एक दूसरे को प्रोत्साहन Can't नहीं सकते, lift up one another. एक दूसरे को उठा नहीं सकते। Thorny church. कांटेली कलीसिया। We need to deal with the hearts. हमें हृदयों के साथ काम करना है। Some fell on a good ground. कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, 100 folds, 100 गुना, 60 folds, 60 गुना and 30 और folds. 30 गुना, 100 folds. 100 गुना। The quality of the land, उस भूमि की खासियत, the quality of the church, कलीसिया की the खासियत, quality of the heart, हृदय की खासियत, how it is responding to the Lord's word. प्रभु के वचन को वो कैसे प्रतिक्रिया दिखाते Why हैं? not all 100 per folds? सब 100 गुना क्यों नहीं? 100 folds, 100 गुना, 60 folds, 60 गुना 30 folds. और 30 गुना। Why not all Philadelphia church? सब फिलडेल्फिया कलीसिया क्यों नहीं? Samarna church, समरना चर्च, Philadelphia church, फिलडेल्फिया कलीसिया, Pergamum church. परगमुम Which कलीसिया। church I am? किस कलीसिया का मैं हूँ? What is my heart condition? मेरे हृदय का परिस्थिति क्या है? I want to give you 2 examples. 2 उदाहरण देने हैं, Moses मूसा and Paul. और पौलुस। You know Moses, अब जानते हैं मूसा, Exodus 7th chapter, निर्गमन 7वां अध्याय and I think 8th verse onwards. 8वें वचन से आगे God said, परमेश्वर ने Moses, कहा, मूसा when you go there, जब तू वहाँ when Pharaoh will जाएगा, ask you for a sign, जब फिरौन तुझसे चिन्ह के बारे में पूछेगा, then throw your stick. तो अपने लकड़ी को फेंक देना। Hallelujah. What will happen? क्या होगा? बोलिए क्या होगा? हाँ? वो सांप बन- But you know what Moses knew? मूसा क्या जानता था? आपको मालूम है? 40 years he learned the wisdom of Egypt. 40 साल वो मिस्र देश के शिक्षा को सीखा। मिस्र देश के ज्ञान को सीखा. What is the wisdom? बुद्धि क्या है? They were sorcerers. They were the magicians. वो जादू करने वाले थे। They will throw their stick and the dragons will come out. Somebody say वो hallelujah. अपने लकड़ी को फेंकेंगे तो बड़े बड़े अजगर निकल आएंगे। Hallelujah. क्या निकलेंगे? ड्रैगन, अजगर, बड़े बड़े राक्षस निकलेंगे उनके लकड़ियों से. और आपने क्या फेंका? सांप निकला. But can you see the quality of Moses? पर आप जानते हैं मूसा की खासियत क्या थी? Humble man. बहुत ही नम्र व्यक्ति, Because he has seen the unseen God. इसलिए क्योंकि बस that's उसने न दिखने वाले परमेश्वर को देखा। He knew my God is. वो जानता था कि मेरा परमेश्वर है। I don't know, Lord. मैं नहीं जानता He's प्रभु। telling you throw the stick. Yes, he went. वो परमेश्वर कहता है लकड़ी को फेंको और वो गया और किया। He knew वो जानता था magicians will throw their stick. कि वो जादूगर भी अपने लकड़ी को फेंकेंगे। He learned their wisdom. वो उनकी बुद्धि को सीखा था। You know who can learn the wisdom and knowledge and sorcery and who can have a relationship with sorceries? Only kings and kings' children. केवल राजा और राजा का बच्चा ही ये सब जादू टोना को जान सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं. In Egypt, and he learned it. मिस्र देश में और उसने सीखा, But पर he humbled himself. उसने अपने आप को नम्र किया। स्वतःला शून्य केला. He made himself of nothing. उसने अपने आप को नहीं के समान किया। I know मैं जानता हूँ Egyptian magicians may make dinosaurs. इजिप्ट के मिस्र देश के जो जादूगर है वो डायनासोर को भी बना सकते हैं, But my snake is enough. पर Somebody say मेरा सांप जो है hallelujah. काफी है। Hallelujah. Hallelujah. God is good. परमेश्वर अच्छा है। God is good. परमेश्वर अच्छा है। You know Paul आप जानते हैं पौलुस को learned under the hand of Gamaliel, गमालिएल के हाथ के नीचे सीखा। a great teacher.
बहुत बड़ा शिक्षक, full of wisdom and knowledge. पूरा बुद्धि और ज्ञान से भरा He हुआ। said, I count all my knowledge, उसने कहा मेरा सारा ज्ञान I count it as a dung. मैं गंदे कचरे के समान जानता हूँ। That's why इसीलिए that I may take up the knowledge of Christ. इसलिए कि मैं प्रभु यीशु के ज्ञान को ले सकूं। Whatever you may be feeling, आप जो कुछ सोचते हैं, whatever you may be thinking, जो कुछ आप विचार कर रहे let हैं, us lay all our thoughts, तो आइए हमारे सारे विचारों को डेल put दें, off all our wisdom, हमारे सारे ज्ञान को डेल, leave all our experience, सारे अनुभव को छोड़ दें, our experiences with the people, अनुभव लोगों के साथ, our experience with the powers of this world. इस दुनिया के ताकत के साथ अनुभव, Let us leave all that. आइए हम सब कुछ छोड़ Shake it दें, off and dust it off. उसे ऐसा छोड़कर हिलाकर छोड़कर फेंक दे. Just obey God. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें Let us be so much serious now. और इतना गंभीर हो जाए। My Lord, मेरा प्रभु, I know your word. मैं जानता हूँ तेरे वचन I know को, your promise. मैं तेरे अभिवचन को जानता हूँ Nothing else. और कुछ नहीं चाहिए, Just obey. केवल उसकी आज्ञा का पालन करो, Just obey उसकी आज्ञा का पालन करो and be patient with him. और उसके साथ आप धीरज से रहो। Let the enemy come as a dragons. दुश्मन बहुत बड़े अजगर के समान क्यों ना आए, Let them come as a dinosaur or whatever it may be. वो किस भी प्रकार के क्यों ना हो, But let's go humbly. पर आओ हम नम्रता से जाए, Let's walk with God. प्रभु के साथ चले, Prepare our hearts. अपने हृदयों को बनाए। Whatever may be the situations, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना how हो, cruel it may be, वो कितनी भी दुष्ट क्यों ना हो, don't worry. चिंता मत करो, Keep trusting God. प्रभु पर भरोसा करते रहो, Keep waiting on God. परमेश्वर पे रुके रहो। He's good to bless you. वो अच्छा है आपको आशीष देने, He's good to uplift you. वो आपको अच्छा है आपको He उठाने has में, blessed you with talents. उसने आपको तलांत से आशीष किया है, That is enough for you. वो काफी है आपके लिए। Father, we love you पिताजी, हम तुझसे प्रेम करते हैं and we worship you और तेरी आराधना करते हैं and we praise you. और तुझे धन्य कहते हैं। You are great, I am. तू महान, मैं जो हूँ सो हूँ, You are the powerful God. तू सामर्थशाली खुदा। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं प्रभु। worship you, Lord. तेरी आराधना करते We हैं। give all glory, all honor, सारी all महिमा, praise. सारा आदर, सारी To स्तुति you alone, तुझे all देते हैं। praises, Lord. To you alone, all glory, Lord. सारी स्तुति, सारी महिमा तुझी को देते To हैं। you alone, all praises and blessings. तुझी को सारी Your name be exalted. प्रशंसा, तेरा नाम ऊंचा उठाया Your जाए। name be magnified. तेरा नाम ऊंचा उठाया Your जाए name be lifted on high. और तेरा नाम ऊंचे में उठाया जाए। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, We worship you. तेरी आराधना करते We हैं, praise you. तुझे धन्य कहते We हैं, bless you. हम तुझे धन्य कहते Thank you हैं। for your very presence here. धन्यवाद करते हैं तेरे खास उपस्थिति के Thank you for लिए, your grace here. तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। We all as a church, हम सब कलिसिया, we just love you. हम तुझसे प्रेम करते We हैं, praise you. तेरी स्तुति We करते thank हैं। you for you, Lord. हम धन्यवाद करते हैं तेरे लिए, Your presence. तेरी उपस्थिति। We want nothing. हमें कुछ भी नहीं We चाहिए, lack nothing हमें कोई भी घटी नहीं, because you are a shepherd. क्योंकि तू हमारा छरवा है। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।